میں خوشامدید پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حکومت میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی جماعت نون لیگ کے وزیر اعظم کے امیدوار کو ووٹ دے گی۔ وفاق میں وزارت نہیں لے گی، تاہم صدر مملکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی گورنرز کے عہدے کے لیے اپنے امیدوار نامزد کرے گی۔ Nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PTM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے، مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے، بجٹ کے ووٹس ہے، لیجسلیشن ہوں گے، اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے، اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا نون لیگ کی حمایت کا اعلان خوش آئند ہے، تاحال نون لیگ کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد امیدواروں کو ملانا ہر ایک کا حق ہے۔ 80 پر پہنچ چکے آزاد لوگ زیادہ جیتے ہیں، اگر کوئی دھاندلی کی بات کرتا ہے تو عجیب ہے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت برائے حکومت کا معاملہ نہیں، پاکستان کو بچانے اور پھر ترقی کی منزل کا مرحلہ ہے۔ یہ بھی کہا کہ ہمیں قربانیاں دینا ہوں گی، برداشت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ اگر یہ آزاد منچ جو ممبرز ہیں اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شوق سے بنائیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں، پی ٹی آئی کو ان کا لارجسٹ پارٹی وہ بنائیں، اگر بنا سکتے ٹھیک، نہیں بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے۔ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ میں نے میجورٹی بتا دی کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی ہے الحمدللہ۔ میاں نواز شریف نے قوم کو بتایا کہ میجورٹی ہونے کے باوجود بھی میں مشاورت کروں گا، اور اس مشاورت کے عمل کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کسی قسم کے اتحاد کے امکانات کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ ان 3 جماعتوں کے علاوہ ہر جماعت سے بات کی جا سکتی ہے۔ وفاق میں حکومت بنانے کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پہلے انتخابی نتائج چیلنج کر رہی ہے، اس مسئلے پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے جیل میں کسی اعلیٰ سرکاری عہدیدار سے ملاقات کی تردید کی، کہا وہ اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل نہیں ہو رہے۔ بشرا بی بی کی بھی اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پہنچ چکے ہیں، جہاں پر حکومت سازی کے حوالے سے اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مناظر آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما، جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف چودھری شجاعت سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے ہیں۔ ایم کیو ایم کا وفد بھی یہاں پر پہنچا ہے، اور یہ 3 جماعتیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا وفد بھی یہاں پر موجود ہے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ پر۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد علی امین گنڈاپور ماضی میں سیاسی مخالفین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بدزبانی کی، جبکہ مہنگائی پر عوام کے سامنے انوکھی منطقیں پیش کرتے رہے ہیں۔ یار جی میں بھوک کرا رہے ہو یا تم کیا کر رہے ہو یار؟ تم گاڑیاں موجود ہیں، پیسے نہیں ہیں علی بھائی۔ یار تمہارا کام کیا ہے یار؟ تم آج جیسے ہو کے پڑ گئے ہو تم آج یار۔ میرا کام نہیں ہے تو پھر میں ادھر کیا کر رہا ہوں؟ تو تم یہی کر رہے ہو صبح سے کہ تمہارے سے 20 بندے برابر نہیں ہوئے صبح سے۔ تم نے صبح بندے بلوانے تھے، تم سے وہ 5 گاڑیاں نہیں بھری گئی۔ وہ سا کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے 5 بندے بھیج رہا ہوں پورے ساؤتھ سے۔ تمہیں پتہ ہے، چھوڑ دو بس، تمہارے بندے میں نے دیکھ لی ہے، تمہیں صبح پورے کر دیے، بس چھوڑ دو۔ میں
चालू मेरा काम कर रहे हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। इस पीपल्स पार्टी ने घसीट के निकाला था असेंबली से, आज ये उनके साथ बैठा हुआ है, ये इसकी गैरत है। ये अपने दादा की बात पे तो गैरत खा ले, अवाम पे क्या गैरत खाएगा। और जब इसका दादा आया था, पूरा डी खान जानता है कि जब इसका दादा आया था एक कच्चा कमरे का घर था, आज अरबपति बना है अवाम का पैसा खाकर। मैं समझता नहीं हूँ इस काबिल कि मैं ऐसे बात करूं, इसमें जुर्रत है। जो मैंने चैलेंज किया है, मैं आज भी खड़ा हूं, अपने बाप से कहे कबूल करे चैलेंज और आ जाए। शराकत इक़्तिदार के लिए हाथ मिलाने वाली तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी एक दूसरे को आड़े हाथों लेती रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक तो इस इलेक्शन मुहिम में भी ये कहते आए हैं कि तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी की ही दूसरी शक्ल है, लेकिन बात सिर्फ मौजूदा इलेक्शन मुहिम की नहीं है, माजी में भी एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश होती रही है। माजी में सिराजुल हक कह चुके शहबाज शरीफ, जरदारी और बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक हैं। इस पर बानी पीटीआई ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा था कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक विकेट के दोनों तरफ खेलना बंद कर दें। सिराजुल हक की जानिब से तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सफ में शामिल करने की कोशिश काबिल मजम्मत है। यही नहीं, सोशल मीडिया के मुताबिक माजी में जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बानी पीटीआई के लिए ये भी कह चुके हैं कि थूक लगाकर गेंद चमकाने वाला थूक लगाकर मुल्क चलाना चाह रहा है। सोशल मीडिया पर ही अमीर जमात इस्लामी का ये बयान भी ज़ेर गर्दिश है कि बानी पीटीआई कहते हैं कि पापा गुस्से में हैं, उनके पापा आर्मी चीफ हैं। पीटीआई की हुकूमत ने आपको एक बार फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आईएमएफ का गुलाम बनाया और आज अमली तौर पर पाकिस्तान पर आईएमएफ की हुकूमत कायम हो गई है। आज 10 सालों से पीटीआई की हुकूमत है, तो उस सूबे पर 1000 अरब का कर्जा चढ़ा है। 1000 अरब का कर्जा हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त। एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान। ये 3 आदमी इब्राहिम का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। क्या आप नून लीग की जानिब से वजारत उस्मा के उम्मीदवार हैं? सहाफियों का शहबाज शरीफ से ये सवाल, जिस पर शहबाज शरीफ मुस्कुराते हुए चौधरी शुजात के घर में दाखिल हो गए। कैसे आप सर, नून लीग का कैंडिडेट कौन है वज़ीर आज़म का? सर आप हैं ये नवाज साहब, क्या समझा जाए सर? सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से अहम खबरें। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफद ने खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में इस्लामाबाद में मुलाकात की। कायदीन ने सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर मशावरत की। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम ने बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया है। कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान के मुताबिक एमक्यूएम ने एक बार फिर बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम की तजावीज़ सामने रख दी हैं। शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। बात करेंगे इसी बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ किरण खान से। किरण, क्या है मुलाकात की अंदरूनी कहानी? जी बिल्कुल, ये मुलाकात जो है वो शेड्यूल मुलाकात नहीं थी। एमक्यूएम का वक्त इसहाक डार से मिलने वहाँ पर गया था, इसहाक डार के एनक्लेव में, जहाँ पर दीगर रहनुमा भी मुस्लिम लीग नून के मौजूद थे कि अचानक से शहबाज शरीफ भी वहाँ पर आए, जहाँ पर एमक्यूएम की उनसे मुलाकात हुई। और मुलाकात जब हुई है तो एमक्यूएम ने एक बार फिर अपना जो मुतालबा था आईनी तरमीम का बल्दियाती निज़ाम के हवाले से वो दोहराया और शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो इस पर अमल दरामद कराएंगे। ताहम अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई कमिटमेंट जो है मुस्लिम लीग नून से हुकूमत साजी के हवाले से नहीं की गई। और जो हमारे जराए मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUIF की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में अरकान ने हुकूमत में शामिल ना होने की तजवीज़ दी है। ताज़ा तरीन खबर लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार, क्या फैसला भी हुआ इस पर कोई? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जो मरकज़ी मजलिस आमला है, तकरीबन 15 रुकनी ये कोर कमेटी है जिसने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन में जो है जो नताइज आए हैं वो यकतरफ़ा नताइज आए हैं और हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। और उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि अब हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों को भी हम ये वो दावत देंगे कि आप अपोजिशन में वो मुश्तरका किरदार अदा करें। इस हवाले से जो अमूमी मजलिस है इनकी, यानी कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी है JUIF की, उसका इजलास अगले 10 रोज़ में बुलाने का फैसला वो किया गया है। और इस मजलिस या ये जो CWC है JUIF की, उसमें 600 से ज़्यादा अरकान वो शामिल हैं और वो मुल्क भर से जो उनके उमरा और जोमा और नज़मा जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और फैसला करेंगे, इसको हतमी फैसला करेंगे उस वक्त। बहुत शुक्रिया वकार सत्ती जी।
सियासी जोड़ तोड़ और हुकूमत साजी के हवाले से मामलात पर गौर करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंचे हैं शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और MKM का वफ्द भी। और इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए ज्वाइन किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम ने। अशरफ मलखम साहब, क्या पता लगा है, एजेंडा क्या है, क्या कोई बड़े फैसले होने जा रहे हैं? जी, मेरी वफ्द के आने से थोड़ी देर पहले जो काफ लीग के करीबी ज़राए उनसे बात हुई थी। अब ये हैरान कुन बात थी कि चौधरी शुजात को इस वफ्द के आने का बहुत देर तक नहीं पता था, बहुत लेट उनको पता चला। उनको उनके बेटे जो हैं चौधरी साले को उन्होंने बताया कि वफ्द आ रहा है, उनको इसलिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने बाद में दोनों बाप बेटे ने अलहदा बैठ के एक मीटिंग की जिसमें इस वफ्द के बारे में आने के बारे में उनको बताया गया, एतमाद में लिया गया। अभी तमाम बड़े लीडरान जो तमाम इत्तेहादी जमाती होंगी अगली हुकूमत वो वहाँ पहुंच चुके, जब मैं खास तौर पर MKM का वफ्द है, इसमें गवर्नर तैसूरी भी शामिल है, इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी है, इनके साथ यूसुफ गिलानी है, डॉक्टर आसम है, इस तरह नून लीग से शहबाज शरीफ हैं, याद सादिक और इसहाक डार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है। आज की जो हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ अहम अनाउंसमेंट होगी जो थोड़ी देर में इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ मलखम साहब इस मालूमात के लिए। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी का प्लान गैर फितरी और गैर हकीकतमंदाना करार दे दिया है। आज शाहजेब खानजादा के साथ में एहसन इकबाल ने कहा कि ऐसे सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें फैसला साजी की तमाम बुराइयां उनके हिस्से में आए। हर हाल में हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए एहसन इकबाल का तफसीली इंटरव्यू रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।